Hello guys, as you know, your ICSE is going to be held in 2 terms. So congratulations for that. The term 1 is going to be completely MCQ based and expected to be held in November. For ICSE, have released specimen papers for all the subjects. Today in this video, we are going to do the detailed analysis of your maths paper. We are not only going to solve the paper, but also discuss the concepts for each questions. So first have a look at the question paper. What is the pattern of the paper and how much marks? As you know, it's going to be 40 marks, but how it has been divided into different sections. So let's see that. All right, so we have the paper here. You all can see that. Okay, so this paper is of 40 marks that everybody is aware of, is going to be 40 marks. But it has been divided into 3 sections. So section A, section B, and section C. Section A has 16 questions. Section B has 6 questions. And section C has 3 questions. Now, each question of section 1, that is section A, is of 1 mark. So this contributes to 16 marks. Each question of section B is of 2 marks. So take 6 questions. So total we have 12 marks. So till now 28 marks is done. And this 3 questions of section C will be definitely each will be of 4 marks. So this will also contribute to the remaining 2. So this comes to 40. Okay. So let's solve now, right? Let's start with the kind of questions that they have included and try to solve them and revise the concepts, guys. Yeah. So question number 1, look at question number 1. If a matrix is of the order 3 by 2 and matrix B is of the order 2 by 2. So we have a matrix A जिसका order है 3 by 2 and matrix B जिसका order है 2 by 2. Find the matrix AB. Now AB मतलब A और B का multiplication is of the order what? So they are asking us कि A और B को multiply किया तो जो matrix बनेगा उसका order क्या होगा, right? So it's quite simple. If you have a matrix A whose order is 3 by 2 and you multiply it with matrix B जिसका order है 2 by 2, the resultant matrix, that is multiplication होने के बाद जो matrix आएगा, we call it as AB matrix, उसका जो order होगा, it is going to be this. क्या? पहले वाले matrix का rows and दूसरे वाले matrix का columns. ठीक है? So it's going to be 3 by 2 and the answer is A. Right? So the answer here, the correct option here is A. Now, let's revise the concept what I just said. How was it solved? It was solved very easily. But इसको कैसे किया हमने वो देख लेते हैं. ठीक है? See, if you have a matrix A, whose order is m by n, and you're going to multiply it with another matrix B, and उसका order compulsory. See, आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, कोई भी 2 मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी 2 मैट्रिक्स हो ना, देयर हैज टू बी अ कंडीशन एंड देयर इज अ कंडीशन कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है. ये तब किया जा सकता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का रोज दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज से सेम हो. कहने का मतलब है कि यहां पे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स n है तो बी मैट्रिक्स जो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है उसके पास भी उतने ही रोज होने चाहिए, मतलब n. ठीक है? एंड कॉलम्स कितने भी हो इट डजंट मैटर, तो आई कॉल इट एस पी. एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा जिसका नाम रखेंगे हम ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? इट विल बी गिवन बाय दिस. इट इज गिवन बाय दिस. ठीक है? सो इट इज m by p. So I hope you understood the logic here. ठीक है? So you are given the matrix 3 by 2 and this is 2 by 2. So ये जो matrix A है उसका order देखो 3 by 2 है, मतलब इसके पास columns 2 है, और यहाँ पे जो matrix B है उसके पास rows 2 है. So the multiplication is possible, right? ये same होना चाहिए. Multiplication is then only possible. अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो होगा इट इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज 3 by 2. ठीक है? आई होप
डिटेल में समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए और होने के बाद क्या मिलता है, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दिस वाज वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन पे द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी, परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है शेयर ऑफ एसजीएसटी, राइट। परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीएसटी, एसजीएसटी का शेयर, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी का शेयर ऑफ द टोटल जीएसटी फॉर एन इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट इज हाउ मच, राइट। तो आपको तो पता ही है कि इंट्रा स्टेट है तो जितना भी जीएसटी कलेक्ट होता है वो हाफ स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सो हाफ इज एसजीएसटी एंड अदर हाफ इज सीजीएसटी। सो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि एसजीएसटी कितना होता है टोटल का, तो एसजीएसटी टोटल का तो 50% होता है, हाफ होता है। सो द आंसर हियर इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इफ यू कलेक्ट total GST as maybe 500, if your total GST is 500, the 250 is going to go as SGST and the other 250 is going to be there for CGST. तो SGST is always half, half मतलब 50%, right? हाफ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, चलो हाफ को इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो 50%, सो हाफ को ही दूसरा तरीका लिखने का है 50%, ठीक है। आई होप इट वाज अंडरस्टूड, इट वाज क्वाइट इजी। बट अगर इधर इंट्रा के बदले इंटर होता तो आंसर इसका क्या होता, थोड़ा सोचो, इसका आंसर क्या होता अगर वो इंटर स्टेट होता तो अगर इंटर स्टेट होता तो एसजीएसटी वुड बी 0, क्योंकि अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया इंट्रा स्टेट सेल से मतलब दो स्टेट्स के बीच में, उस समय जो भी जीएसटी कलेक्ट होता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो दैट विल बी काउंटेड एज एसजीएसटी और मे बी यू कॉल इट एज आईजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं होता, वो आईजीएसटी होता है, ठीक है। सो उस समय अगर एसजीएसटी पूछेगा तो एसजीएसटी तो होता ही नहीं है, सो गोना बी 0%, राइट। अनदर ट्विस्ट हियर कुड बी कि यहाँ पे अगर व्हाट परसेंटेज ऑफ एसजीएसटी ऑफ द टोटल सीजीएसटी अगर होता, या टोटल वर्ड नहीं आता है, सिंपली सीजीएसटी पूछता, तो एसजीएसटी सीजीएसटी का कितना परसेंट है वो पूछ रहा है। अब जैसे वही एग्जांपल पे आते हैं, हम लोगों ने 500 का समझो जीएसटी कलेक्ट किया होगा, एंड इफ यू हैव we will have 250 as SGST and 250 as CGST, तो SGST और CGST का परसेंटेज क्या है, मतलब SGST CGST का कितना परसेंट है, तो 250 को 250 से डिवाइड करेंगे तो इट्स गोना बी 1, दोनों सेम है तो इट्स 100%। 1 को परसेंटेज में लेके आओ तो इंटू 100 करना पड़ेगा, राइट। सो इट्स गोना बी 100%, करेक्ट। सो these all twists can be included in this question. So let's go for next question. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. So we have a trapezium. So let me just tell you. Okay, this is a trapezium, and we have AB parallel to DC. The triangle the triangle similar to AOB is which one? So हमें पूछ रहा है ये जो triangle है, गाइस हमारे पास जो ये triangle है ये AOB triangle, ये triangle के similar कौन है, ठीक है। इसका इससे सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है, तो क्योंकि देखो सिमिलैरिटी में पैरेलल साइड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हम पैरेललाइंस पे पहले फोकस करेंगे। ये देखो पैरेललाइंस, अब जब भी पैरेललाइंस दी होती है तो वी आइदर थिंक ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स और वी थिंक ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट आई डोंट सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का स्कोप यहाँ पे है। वी कैन यूज alternate angles का concept and see what angles we can say equal. So AB is parallel to DC. So if I consider this as transversal, so you see a Z is formed. So यहाँ पे जो ये वाली angle होगी, this angle and this angle will be equal to each other. So this is 1, so this is also 1, correct? So ये दोनों angles होंगे, क्यों? क्योंकि alternate angles है। alternate angles equal कब होती है, जब lines are parallel, और question में lines parallel दिया हुआ है, lines parallel है तभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कह रहा है। सो ये एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल
AODC या CDO, जो कहना है कह दो, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। सिमिलरली अगर हम यही पैरेलल लाइंस ले रहे हैं ना, और ये वाली ट्रांसवर्सल ले लें, अगर AC ट्रांसवर्सल ले लें, तो भी ऑल्टरनेट एंगल्स ये जो होंगी इनको इक्वल कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना यार, लाइंस पैरेलल है तभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। अगर यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं दिया होता तो आई वुडंट हैव सेड कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कैन नॉट से द एंगल्स आर इक्वल। द एंगल्स फॉर्मिंग Z और द ऑल्टरनेट एंगल्स और द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मैं वो बोल नहीं पाता अगर लाइंस पैरेलल नहीं होती। यहाँ पे लाइंस पैरेलल दी हुई है तभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो दो एंगल्स, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, तो आई कैन से दैट कि डेफिनेटली जो हमारा AOB ट्राइंगल है वो सिमिलर है इस DOC ट्राइंगल से, राइट? कैसे, वापस बता देता हूं दोस्तों। सो वी हैव दिस इक्वल्स टू दिस ऑल्टरनेट एंगल्स, दिस इक्वल्स टू दिस अगेन रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, या तो फिर आप ये भी तो कर सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लो। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, राइट, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो ऑपोजिट एंगल्स होती हैं वो इक्वल होती है। सो सिमिलर करने के लिए तो दो रीजन ही चाहिए होते हैं। यहाँ पे मुझे पता है तीनों एंगल्स इक्वल है, सो दो एंगल्स भी इक्वल हो तो दैट इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे हम बिंदास कह सकते हैं कि AOB दिख रहा है, ट्राइंगल AOB ऊपर वाला येलो वाला, वो सिमिलर है ट्राइंगल किससे? ट्राइंगल DOC से। ये गलत हो जाएगा, DOC मत लिखना, ठीक है। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? देखो, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल C है, तो हियर इट्स गोइंग टू बी C। O एंगल इज इक्वल टू O, राइट, एंड B एंगल जो है, ये वाली एंगल, ये किसके बराबर है? D के बराबर है, तो यहाँ पे D आएगा। समझ रहे कि नहीं दोस्तों? सो ऑप्शन COD मतलब ऑप्शन C इज करेक्ट। ट्राइंगल COD से वो कॉन्ग्रुएंट है। काफी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजा आ रही है, आई थिंक बहुत ज्यादा इजी है। चलो नेक्स्ट आते हैं। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 इज व्हाट? 9 एंड 16 का मीन प्रपोर्शन। नाउ दिस रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट। सो मीन प्रपोर्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर्स दिया हुआ है और बोलता है इनका मीन प्रपोर्शन निकालो, तो टोटली 3 नंबर्स होंगे, तो पकड़ लेते हैं। देखो 9 और 16, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी मीन नहीं है। 9 और 16 एक्सट्रीम्स है, ठीक है, मीन एक ही है, दैट इज x, ठीक है। तो अब ये जो 3 नंबर्स दिए होते हैं, ये जो 3 नंबर्स दिए हैं, ये तीनों कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, कह सकते हैं कि नहीं, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। 9 और 16 का मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाला, मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाला। सो मिडिल टर्म पूछ रहा था कितना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्रपोर्शन इज 9, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन इज 16, और ये मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है यार? प्रॉपर्टी सबको पता है कि मीन प्रपोर्शन का जो स्क्वायर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, राइट, मतलब फर्स्ट इनटू थर्ड प्रपोर्शन होता है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 144 विच इज कमिंग एज 12। सो 12, अब ऑप्शन डी हमारा 12 है एंड दैट इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा एक बार वापस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को मीन प्रपोर्शन पूछा है, ठीक है। तो मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाला, सिंपल है, बीच वाला टर्म। सो ये दोनों तो एंड्स में आएंगे, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, और मीन प्रपोर्शन x होगा। सो जब भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं और वो तीनों प्रपोर्शन में बोले या कंटिन्यूड प्रपोर्शन में बोले, ठीक है, प्रपोर्शन बोले या कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोले, इट डजंट मैटर, व्हेनेवर यू हैव 3 टर्म्स इन प्रपोर्शन, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि बीच वाले का स्क्वायर जो होता है, जो बीच वाला है दैट इज x, इसका स्क्वायर जो होगा वो फर्स्ट इंटू लास्ट होगा, ठीक है, दैट विल द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। सो बीच वाले का स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16। समझे दोस्तों? काफी आसान है। अच्छा, कुछ आप लोगों ने बहुत जनों ने ऐसे भी पढ़ा होगा, सी 9 अपॉन x इज इक्वल्स टू x अपॉन 16, करेक्ट। अब इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16, यही तो आने वाला है, right? So it's again same. So why to go with this guys? Why to go with this? इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं, इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं, सिंपल है। मीन प्रपोर्शन बोला है, 3 चीजों की बात की है, 3 ही चीजों की बात की है, तो मीन प्रपोर्शन
का स्क्वायर, मतलब बीच वाले का स्क्वायर विल बी फर्स्ट इनटू लास्ट। ये प्रॉपर्टी याद रख दो, ठीक है। सो हमेशा याद रखो, क्या याद रखेंगे कि ए बी और सी अगर प्रपोर्शन में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बोल सकते हैं, ठीक है। बीच वाले का स्क्वायर इज फर्स्ट इनटू लास्ट। सो उस हिसाब से इसका आंसर 12 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। देखो, अ मैन डिपॉजिटेड 500 पर मंथ फॉर 6 months। वाओ, एवरी मंथ 500 डिपॉजिट कर रहा है 6 महीने के लिए, और उसने रिसीव किया एंड रिसीव्ड 3,300 एज द मेच्योरिटी वैल्यू। सो फाइनली एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड, टाइम होने के बाद ही गॉट 3,300 रुपीज एंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय हिम इज सच एन इजी क्वेश्चन गाइस, इतना इजी है। देखो 500 रुपीज डिपॉजिट किया गया फॉर 6 months, एवरी मंथ 500 500 500 ऐसा डिपॉजिट करते गए 6 महीने के लिए। तो मतलब हमने बैंक में कितना पैसा डाला, how much money we deposited, 500 into 6, right? So that is 3,000। so हमने 3,000 बैंक में डिपॉजिट किया इन अ पीरियड ऑफ, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months। so can I say कि 500 into 6 will give me 3,000। so 500 करके मैंने बैंक में 3,000 डिपॉजिट किया था 6 months में, एंड आफ्टर 6 months बैंक वालों ने मुझे मेच्योरिटी वैल्यू दिया 3,300। तो मुझे 3,300 मेच्योरिटी वैल्यू मिल गया, राइट। सो दिस इज माय मेच्योरिटी वैल्यू, करेक्ट दोस्तों, ये मेच्योरिटी वैल्यू है। तो सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ यार, आपने 3,000 दिए थे और आपको 3,300 मिला, तो एडिशनल जो आपको अमाउंट मिला वो तो इंटरेस्ट ही है, और एडिशनल अमाउंट कितना है यहाँ पे 300, करेक्ट। सो आई वुड से इंटरेस्ट इज सिंपली मेच्योरिटी वैल्यू माइनस दी व्हाट वी से, हमने नॉर्मली P इंटू एन करके पढ़ा होता है, राइट, दैट्स अ टोटल प्रिंसिपल। सो हमने 3,300 रिसीव किया और हमने दिया था 500 6 times, करेक्ट। सो दिस रिजल्ट्स इन 300 रुपीज। अब ये इतना मैकेनिकल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको ऑप्शन टिक करके जाना है, सीधा ऑप्शन बी आ जाएगा। और देख के समझ जाए तो यार 500 6 times दिया, तो मैंने बैंक को 3,000 दिया, बैंक में मुझे 3,000 और 300 भी दिया, मतलब वो जो एक्स्ट्रा 300 दिया दैट इज द इंटरेस्ट। सो इट वुडंट टेक मोर देन 10 seconds टू सॉल्व दिस सम गाइस, बहुत इजी था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार। द सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर लाइन इज, ये नंबर लाइन बना के दिया, सॉल्यूशन सेट काफी आसान है। देखो पहले तो आपको दिख रहा है इस तरीके का पूरा लाइन, पूरा ये सेक्शन डार्क है, right? So this means x belongs to real numbers and all the options have x belongs to real numbers। हम ये कब बनाते हैं, इस तरह से कब बनाते हैं, -3 से लेके 2 तक सब कुछ लिया है, सब कुछ, राइट, एवरीथिंग इज टेकन, ऑल द नंबर्स आर टेकन, मतलब रियल नंबर्स। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, राइट। तो सब में x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो कोई ऑप्शन रूल्ड आउट तो नहीं हुआ। अब थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ पे -3 पे एक फिल्ड सर्कल है और 2 पे एक एम्प्टी सर्कल है। अब ये जो फिल्ड सर्कल होता है इसका मतलब है ये कि -3 इंक्लूडेड है, करेक्ट। फिल्ड सर्कल मतलब, फिल्ड सर्कल कब बनाते हैं, जब -3 इंक्लूड रहेगा, मतलब कोई चीज को इंक्लूड करना है तो वहां पे हम फील्ड सर्कल बनाते हैं, और कोई चीज को एक्सक्लूड करना है तो वहां पे हेलो होलो सर्कल बनाते हैं या एम्प्टी सर्कल बना देते हैं। सो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि -3 इंक्लूडेड है, देखो -3 इंक्लूडेड है। जो हमारा आंसर है दिस इज बिटवीन -3 एंड 2, हमारा आंसर -3 और 2 के बीच में है, जिसमें -3 जरूर लेना है हम लोगों को, वी हैव टू टेक -3 बट 2 नहीं लेना है। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बोल रहा है कि -3 को ले और 2 को ना ले, मतलब 2 से जस्ट पहले तक, 2 पे एम्प्टी सर्कल है मतलब 2 के जस्ट पहले तक 2 इज नॉट इंक्लूडेड, -3 पे फिल्ड सर्कल है मतलब -3 इज इंक्लूडेड। सो यहाँ पे आई कैन सी -3 के यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, मतलब दिस कैन बी एन ऑप्शन। और 2 के यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब 2 को एक्सक्लूड किया है, तो मुझे अभी तक एक करेक्ट लग रहा है। बी में देखते हैं क्या प्रॉब्लम लग रहा है। बी में -3 को इंक्लूड नहीं किया है, विच इज डेफिनेटली अ रॉन्ग। यहाँ पे भी -3 को इंक्लूड नहीं किया, सो ऑटोमेटिकली दिस गोज अवे। और यहाँ पे -3 को इंक्लूड किया है लेकिन 2 को भी इंक्लूड किया, देखो इक्वालिटी साइन है, तो ये भी गलत हो गया। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन ए ही है यहाँ पे, ठीक है। और काफी आसान है यार, मैंने इतना टाइम लिया समझाने में, लेकिन चीजें तो काफी सिंपल है। -3 लेना है, 2 नहीं लेना है, तो -3 की यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट।
और 2 के यहाँ पे इनइक्वालिटी होनी चाहिए, सॉरी इनइक्वालिटी नहीं मतलब इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो x इज मोर देन -3, क्योंकि x हमारा -3 और 2 के बीच में है, तो x -3 से ज्यादा है, ठीक है, और 2 से कम है, ठीक है। -3 से ज्यादा और 2 से कम, मतलब बिटवीन -3 एंड 2, -3 लेना है, 2 नहीं लेना है, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस दिस एंड दिस, देन द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर क्या। ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहला देखो, ये एपी देके रखा है, बोलता है इसके आगे के 2 टर्म्स बताओ। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो पहला नंबर 1 है और फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 9 है, तो कितना ऐड हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस हियर। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस 8 का है, और 9 और 17 मतलब 8 इसमें भी ऐड हुआ है, करेक्ट है कि नहीं। और एपी में तो होता ही है, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब हर नेक्स्ट टर्म डी ऐड करके आता है, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करके आता है। सो एज यू नो ये एपी का कॉमन डिफरेंस 8 है, इसके लिए डी 8 है, मतलब हर नेक्स्ट नंबर 8 ऐड करके ही आएगा, करेक्ट। तो 17 के बाद नेक्स्ट जो होगा तो +8 करना पड़ेगा, सो इट्स गोना बी 25, और 25 में +8 करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 33। सो क्लियरली मुझे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही, काफी आसान है। 1 के बाद 9 मतलब 8 प्लस किया, 9 के बाद 17 मतलब और 8 प्लस किया, तो हम और 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, और 8 ऐड करेंगे तो और नेक्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक है, काफी आसान था। सो यहाँ पे डी की वैल्यू 8 है, इसको थोड़ा समझना था, या देख के पता चल रहा है यार, डी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कॉमन डिफरेंस आ जाता है। सो वेल 8 पे आ जाता है। एबीसी ट्राइंगल क्यूआरपी के सिमिलर दिया हुआ है, गाइस हम लोग को 2 ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, देन द करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स आर। अच्छा, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स आर काफी इजी है यार, ए बी अपॉन क्यू आर, राइट। ए बी का करस्पॉन्डिंग क्यू आर होगा, पीसी का करस्पॉन्डिंग पी आर या आर पी होगा, और एसी का करस्पॉन्डिंग क्यू पी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है वो देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ए बी और क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रपोर्शन रेशो लिया है, राइट, बरोबर है, ये यहाँ पे तो बरोबर दिख रहा है। बीसी और आरपी, बीसी और आरपी ये तो बरोबर ही दिख रहा है, एकदम सही दिख रहा है। चलो बाकी ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं, फटाफट इसको टिक करके बढ़ो मत। ये बोल रहा है एसी और क्यू आर प्रोपोर्शनल है, देखें एसी को और क्यू पी होना चाहिए, तो ये तो गलत ही हो गया इधर ही। और यहाँ बोल रहा है एपी एबी के साथ क्यू आर होना चाहिए, तो एबी के साथ क्यू आर होना चाहिए, तो बात सही है। और बीसी का प्रोपोर्शनल साइड, बीसी के नीचे क्यूपी आना चाहिए, तो बड़े ट्राइंगल का या एबीसी ट्राइंगल का बीसी साइड विल करस्पॉन्ड्स टू आरपी, बट यहाँ पे क्यूपी दिया है, तो दिस इज गॉन, ये ऑप्शन भी चला गया। और यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू बोल रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू तो हो ही नहीं सकता, ए बी अपॉन क्यू आर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। देखो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है हमारा, तो मेरा सजेशन ये होगा कि सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना, लीनियंसी मत रखना, इमीडिएट आंसर को टिक मत करना, सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेना, एक्सप्लॉइट कर लेना, समझ में आ जाएगा क्या है, सही ऑप्शन गेस कर पाओ, वेरीफाई भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, x belongs to whole numbers, wow we have x belongs to whole numbers, और सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है कि -x is greater than -7। अब यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन में जो एक चीज डिफर करती है लीनियर इक्वेशन से, वही चीज हमें यूज करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया दोस्तों, -x is greater than -7, तो आपको तो पता ही है। अब -x तो नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो -x को x कर देंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, और जब भी माइनस की साइन यू ट्रांसफर इट ऑन द अदर साइड, द इनइक्वालिटी चेंजेस, तो ये इसका आंसर ऐसे आएगा। या ऐसे भी करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन जब भी ऐसे करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। सो दिस वाज द ओनली कॉन्सेप्ट इन चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन में, यही एक कॉन्सेप्ट हमने 10th में पढ़ा था, और कुछ तो ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है नहीं। सो ये कैलकुलेशन वाइज दिस वाज इंपॉर्टेंट, x लेस देन 7, x लेस देन 7, और अब क्वेश्चन में कह रहा है x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। देखो इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोगों को x लेस देन 7 मिला, राइट। समझा ना कैसे सॉल्व किया, -x ग्रेटर देन -7, माइनस जब भी वहां पे जाता है, when you shift the minus on the other side, आपकी inequality चेंज हो जाती है, you have to always be careful about that। so in case ऐसा समझ लो, अगर हमारे पास -2x
इज लेस देन 4 आया तो इसका आंसर x ग्रेटर देन 4 अपॉन -2 होगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? जब भी माइनस वाला साइन x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा और वो आप राइट हैंड साइड पे भेज दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होके जाएगी। यही एक रूल है, याद रखना इनइक्वालिटी का। सो x लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर्स बोल रहा है। सो आंसर क्या होता है? होल नंबर्स लेस देन 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड ऑप्शन बी आपको सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 7x + 2 आर दिस एंड दिस। द रूट्स दे के रखा है, देखो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके रूट्स दिया हुआ है और बोलता है द रूट्स करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। अब नाउ दिस इज लाइक अ 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया है, उसके आंसर्स भी निकाल के दिए, ठीक है, उसके दोनों रूट्स भी निकाल दिए, बस बोलता है उसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिख दो। अब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या बोला था मैंने, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ऐसे समझो कि आपको 2 ही डिजिट होना चाहिए, बट 2 डिजिट कौन से? 2 डिजिट वो जो नॉन जीरो हो। लेट मी मेक इट थोड़ा प्रॉपर। आपके पास 2 डिजिट्स होने चाहिए और आपकी जो काउंटिंग है वो वहां से चालू होगी जहां पे आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। देखो मैंने कहा था 2 ही डिजिट होना चाहिए। सो 1.3 ये मेरा फर्स्ट डिजिट, ये मेरा सेकेंड डिजिट। सो आंसर तो ये 1.3 मुझे दिख रहा है, सही है ना दोस्तों? 1.3। अब यहाँ पे तो 9 है, राइट? तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको 2 डिजिट्स तक लेके जा रहा हूं, तो आई हैव टू बी मोर एक्यूरेट। तो मुझे 1.3 ही इंक्लूड करना है क्योंकि बट लास्ट 9 है जिसको मैं इग्नोर करने वाला हूं, उसके वजह से वो 1.3 बन जाएगा 1.4। तो इस सारे ऑप्शंस में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1.4 यहाँ पे, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन आगे भी समझ लेते हैं। देखो ये 0.3 है, राइट? तो इसको फर्स्ट नहीं मानेंगे। मैंने क्या कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के समय यू हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दैट यू कम अक्रॉस। सो ये 0 है, इसको मैं फर्स्ट डिजिट काउंट नहीं करूंगा, इसको मैं वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट नहीं करूंगा। दिस इज माई फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज माई सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट। तो मेरा आंसर यहां तक होने वाला है, मेरा आंसर होने वाला है 0.35 तक। लेकिन जिस डिजिट को मैं इग्नोर कर रहा हूं वो 9 है, इट इज क्वाइट हायर। 4 से बड़ा नंबर होगा तो राउंड ऑफ करना ही पड़ता है, तो 0.35 बन जाएगा 0.36 एंड दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा हुआ रहता 0.0069693 एंड ऐसा होता 0.0127। अब अगर बोलता इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताओ, या एक और एग्जांपल लेते हैं 1.0556 में भी, ठीक है। अब अगर इनका सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं निकालना है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आपको जब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना होगा तो मैंने कहा था रूल क्या है, आपको 2 ही डिजिट चाहिए, लेकिन काउंटिंग वहां से चालू करना जहां पे आपको पहला नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, लेकिन इसको मैं लूंगा नहीं, ये भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं लूंगा। सो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इज 1, दिस इज 2, तो दैट्स इट, डन। हमारे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए 0.0069। ठीक है, अब ये 3 जो है वो तो बहुत छोटा नंबर है, तो 4 से बड़ा होगा तो ही राउंड ऑफ करना है, मतलब इसका आंसर 0.0069 है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2 डिजिट बोला है सर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, 2 ही फिगर्स होने चाहिए, यहाँ पे तो आपने 5 फिगर्स लिखे हैं, 3 0 और 6 9, ऐसा नहीं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट यही है, क्या है कि आपको वो 2 डिजिट्स लेने हैं जहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? पहला नॉन जीरो डिजिट से। चलो इसका आंसर थोड़ा गेस करो, वीडियो को पॉज करके 1 सेकेंड के लिए गेस कर लेना, मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखो 0.0, ठीक है, ये 0.0 ही तो काउंट नहीं होगा। इसके बाद 1 आया, दिस इज माय फर्स्ट डिजिट, 2 आया, दिस इज माय सेकंड डिजिट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां तक होगा। अब 7 काफी बड़ा नंबर है, 4 से सारा 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़ा होगा तो राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा। तो ये तो 7 है, काफी बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.013। आई होप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे करते हैं समझ में आ गया। इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे
काउंटिंग जो है वो यहीं से चालू होगा, क्योंकि पहला पहला डिजिट नॉन जीरो है तो इससे काउंटिंग चालू होगी। तो आंसर होने वाला है 1, ये फर्स्ट हुआ। अब इसके बाद 0 आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लेना ही है, 2 डिजिट हो गए, देखो देखो 2 डिजिट हो गए। समझ रहे दोस्तों, यही है हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट ये जो हमारा जहां पे हम लोग ने स्टॉप किया उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर देखो 5 है, 4 से बड़ा है, तो इसलिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 1.0 को 1.1 लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे बच्चा लोग 3 होता, मान लो यहाँ पे 3 होता, तो हमारा आंसर 1.0 होता। इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है करेक्ट, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट मोर एक्यूरेट। सो आई थिंक काफी 7th स्टैंडर्ड का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा यूज हुआ तो कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब बोलता है 1.5, 3x एंड 8 ये लोग प्रपोर्शन में है, आर इन प्रपोर्शन, तो 4 नंबर्स प्रपोर्शन में है, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, राइट। सो आई विल राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो मीन मतलब बता दिया था, पहले भी एक ऐसा सम आया था, राइट, कोई तो क्वेश्चन नंबर आया था, लेकिन जिसमें 3 था उसमें 3 ही नंबर्स थे, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 है तो कॉन्सेप्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। चलो कर लेते हैं। सो मीन मतलब बीच वाले, बीच में आपको 2 मिलेंगे, 3 और x। सो दिस इज प्रोडक्ट लेना है, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1.5 और 8, सो 1.5 और 8। सो x इज 1.5 इंटू 8 अपॉन 3 से कैंसिल होगा, ये 0.5, 0.5 मतलब हाफ, हाफ को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आता है। सो आई थिंक x की वैल्यू 4 आ गई, बराबर है कि नहीं। तो जस्ट मेक अ नोट कि अगर 3 टर्म्स रहेगा प्रपोर्शन में, तो द कॉन्सेप्ट इज मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसा समझ सकते हैं। और अगर 4 टर्म्स रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सिंपल है कि नहीं, ठीक है। तो बस यार ये देखो, ए बी सी 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब होता है बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने का। और अगर 4 दिए हैं ए बी सी डी प्रोपोर्शन में, तो बीच वालों का मल्टीप्लीकेशन मतलब बी इंटू सी इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब ए इंटू डी। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इससे ऐसे वाले क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाता है, इफ अ पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस देन द रिमाइंडर इज। अब इसमें तो रिमाइंडर थ्योरम यूज होगा, अभी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम तो चैप्टर है ना हमारे पास, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है और रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे करते हैं, हम लोग x+3 से डिवाइड करने वाले हैं, तो x+3 को इक्वल टू 0 कर दो, x+3 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी -3, और इस -3 को सब्स्टिट्यूट करने का है इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा बाय नाउ कि x+3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x+3 को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालनी होती है, और x की वैल्यू -3 है और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इतना आसान है। ठीक है, सो आई थिंक काफी मैंने कचरा कर दिया यहाँ पे, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, सो वंस अगेन हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया है, हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना चाहते हैं, तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। डिवाइड करो मत, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो। ठीक है, डिवाइड करके आंसर आ सकता है, लेकिन डिवाइड करना नहीं है, तभी तो हमने चैप्टर पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम टेल्स यू कि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आई पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो, जो वैल्यू आई वही रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे x+3 है, तो जो भी हम जिससे भी हम लोगों को डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 कर दिया करो, तो यहां से x इक्वल टू -3 आ गई, और अब -3 को सब्स्टिट्यूट कर दो पॉलिनोमियल में, राइट। तो इसके अंदर -3 सब्स्टिट्यूट कर दो, कैसे, 2 इंटू -3 का स्क्वायर -7 इंटू -3 -1, सो 2 इंटू -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, प्लस 21 और -1, करेक्ट। सो 18 plus 21 minus 1, so this comes to 38. So 38 is our answer. समझ में आ गया दोस्तों, कितना आसान था, x+3 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, अगर 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 यहाँ पे 2x+5 होता दोस्तों, समझो हम लोग 2x+5 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो उस समय x की जगह पे पॉलिनोमियल में क्या सब्स्टिट्यूट करते, वो यहां से आता
2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करो, 2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू x की हम लोगों को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं दोस्तों? ठीक है, सो एक बार आपने इक्वेट कर दिया, जो वैल्यू आई x की वो पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। यही तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है। चलो काफी आसान था, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। तो हमेशा यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोगों को इस सम में दिख रहा था x+3 है तो -3 आएगा x की वैल्यू, तो x -3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन अगर 2x+5 आता तो 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो, मिस्टेक मत करना। 13 आप देखोगे कि मैं हर एक क्वेश्चन पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, फटाफट फटाफट हो जाता है, लेकिन थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेता है। If 73 is the nth term of arithmetic progression, 73 is the nth term, wow, nth term मतलब कौन सा टर्म? कोई भी टर्म, it is actually nth term, मतलब it can be any term, it can be 40 term, it can be 13th term or whatever, ये हमारा nth टर्म है, तो हम लिख देते हैं कि nth टर्म जो है वो 73 है, इसको tn लिखेंगे, nth टर्म इज 73। ठीक है, अब हमें पूछा है क्वेश्चन में n की वैल्यू, देखो n की वैल्यू पूछा है, मतलब पूछ रहा है 73 कौन सा टर्म है, विच टर्म इज एपी का, ये एपी दिख रहा है, ये एपी है 3, 8, 13, 18 आगे चलता जाएगा। इस एपी में कहीं ना कहीं आगे जाके 73 आने वाला है, वो 73 कौन सा पोजीशन पे आने वाला है, कौन सा टर्म है वो पूछ रहा है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, 73 कौन सा टर्म है वो पूछ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? 73 कौन सा टर्म है वो पूछ रहा है। तो ठीक है, जिस टर्म की पोजीशन निकालनी होती है उसको nth टर्म मानने का, याद रखना, जिस टर्म की पोजीशन निकालनी है उसको nth टर्म कंसिडर करो और n की वैल्यू निकाल लो। अब AP का जो nth टर्म होता है वो a प्लस n-1d इक्वल्स टू 73, राइट। अब यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, 3 आएगा, और n-1 तो एज इट इज रहेगा। अब d मतलब कॉमन डिफरेंस। अब आपको यहाँ पे AP दिया हुआ है, तो यहाँ पे AP देख के आपको पता चलेगा कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, 8 - 3 किया तो 5 आता है। ये देखो 13 और 8 को माइनस किया तो भी 5 आता है। यही तो दिस मेक्स द कॉन्सेप्ट, दिस मेक्स दिस प्रोग्रेशन एज AP, कॉमन डिफरेंस होता है, राइट। सो ये AP क्यों है? क्योंकि इसके सीक्वेंस, इस पूरी प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस है, तभी उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 है, d यहाँ पे 5 है, तो d की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। सो ये थोड़ा मैकेनिकल काम हो रहा है, राइट। 73 में से 3 गए 70, एंड अब 70 से 70 के डिवाइड में जाएगा 5 एंड n-1 की वैल्यू, व्हाट इज n-1 इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाय, सो दिस कम्स 14, सो n इज इक्वल्स टू 50। तो समझ में आ गया कि इस सीरीज में हम चलते जाएंगे, जो 15th टर्म होगा वो 73 होगा। सो 73 को nth टर्म लिया और n की वैल्यू निकाल लिया 15, तो nth टर्म मतलब 15th टर्म इज 73, सो दिस इज आवर आंसर। अब इसको करने का बहुत सारे अलग तरीके भी हैं, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि क्योंकि ये देखो 1 2, ये कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म 3 है, और ये कोई तो nth टर्म है, राइट, वो 73 है। सो फर्स्ट टर्म और nth टर्म दोनों में डिफरेंस कितने का है? 70 का, राइट। इस टर्म में और इस टर्म में डिफरेंस जो है वो 70 का है, और हमारा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो 5 है। मतलब 3 से डायरेक्ट नेक्स्ट टर्म तो 70 नहीं आएगा, 3 में 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, और 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, और 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। ऐसा करते 5 5 5 5 ऐड करते 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 70 जब ऐड हो जाएगा तब जाके 73 आएगा। तो इस सम को मैकेनिकली करने से अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक सिंपल सा शॉर्टकट है, इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म और जिस टर्म की पोजीशन निकालनी है उसका डिफरेंस लेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम सेव करने के लिए, कैलकुलेशन सेव करने के लिए बता रहा हूँ। देखो nth टर्म 73 है, उसमें से फर्स्ट टर्म निकाल दो, आंसर कितना आया? 70। इस 70 को 5 से डिवाइड कर लो, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो मतलब 3 के बाद
5 5 5 ऐड किया 14 टाइम्स, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के अगर हम 14 टाइम्स ऐड करते जाएंगे, फर्स्ट टाइम 5 ऐड किया तो सेकेंड टर्म आया, वापस 5 ऐड किया तो थर्ड टर्म आया, वापस 5 ऐड किया तो फोर्थ टर्म आया। ऐसा हम लोग 5 ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और कितनी बार करेंगे? 14 टाइम्स करेंगे। तो फर्स्ट टर्म के बाद 14 टर्म्स और आ गए, तो 70 जो 3 है 73, वो 15th टर्म हुआ ना। समझ रहे? देखो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, क्यों? 5 ऐड किया। थर्ड टर्म 13 है, क्यों? क्योंकि देखो ना 10 ऐड हुआ, राइट? तो ऐसे 70 कब ऐड होगा? जब 70 ऐड होगा तो कौन सा टर्म आएगा वो पूछ रहा है। तो 70 को 5 5 5 5 5 से डिवाइड, 70 को 5 से डिवाइड कर लो। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ये अगर डिफिकल्ट लगा तो, लेकिन मुझे ये काफी आसान लगता है। फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 73, दोनों को माइनस कर दो तो 70 आएगा, राइट? तो 70 का डिफरेंस क्रिएट हुआ, द डिफरेंस इज 70, राइट? द टोटल डिफरेंस इज 70, बट एक टर्म में 5 का डिफरेंस है। व्हेन यू मूव बाय वन टर्म, उसमें 5 का डिफरेंस आता है। हमारे पास टोटल डिफरेंस 70 का क्रिएट करना है। 70 का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कितनी बार 5 ऐड करना पड़ेगा? कितनी बार 5 करना पड़ेगा? 14 टाइम्स, राइट? तो फर्स्ट टर्म के बाद 14 टर्म्स और ऐड कर दो, मतलब 15th टर्म जो आएगा वो 73 होगा। ये पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाता है। चलो, अदरवाइज यू हैव दिस मैकेनिकल मेथड टू गो फॉर 14 सम पे आते थे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस आर क्या? अभी रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट? नेचर ऑफ रूट्स, राइट? नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करना है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बोला जाता है, राइट? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो रियल एंड इक्वल कहा जाता है, करेक्ट? और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो नॉट रियल या इमेजिनरी कहा जाता है, ठीक है? या नॉट रियल। तो ये एक हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। चलो, इसका ए बी सी क्या होगा पहले वो देखते हैं। ए होगा 1, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस होता तो मैं -2 लेता। बच्चे लोग यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट 2 दिखता है 2 लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो -2 लेता, ठीक है? +2 है तो इसलिए मैंने सिर्फ +2 है इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखा, और सी की वैल्यू 1 है। तो चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, तब जाके पता चलेगा कि रूट्स का नेचर क्या है। सो बी यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, so that's 4 minus 4 which is coming as 0, and the option is real and equal। b square minus 4ac 0 आया। सही है दोस्तों, आई होप सबको समझ में आया होगा। कमाल है ना यार, इजी है यार, काफी आसान लग रहा है। चलो, सो 14 सम्स हो गए, अभी 15th पे आ जाते हैं। Which of the following statement is not true? Come on यार, ये वर्ड को ध्यान देना, not true, ठीक है? नहीं तो which of the following is true पढ़ लिया, all identity matrix are square matrix, ये तो सही है, तो इसको मार्क करके आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं। Which of the following is not true? All identity matrices are square matrix, that is very true। सबको पता होगा कि identity matrix, this is identity matrix of order 1 by 1, this is identity matrix of order 2 by 2, राइट? इसी तरह से दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ऑल नल मैट्रिक्स, नल मतलब जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इसको भी तो नल मैट्रिक्स ही कहते हैं, बरोबर है ना? इसको भी तो नल मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं सारे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ नल मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? सो ऑल बोल रहा है, ऑल, ये ऑल होने की वजह से गड़बड़ हो गई। अगर यहाँ पे सम होता तो करेक्ट होता ये भी ऑप्शन, ठीक है? बट यहाँ पे ऑल नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है, तो ये तो गलत ही बात हो गई। एंड पूछा था विच इज नॉट ट्रू, तो यही ऑप्शन है। बाकी भी ऑप्शन देख लेता है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जितने रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, करेक्ट. A square matrix, all of those elements except those in leading diagonal are zero is a diagonal matrix. A square matrix एक square matrix है, ठीक है, of whose elements except those in the leading diagonal, ये जो leading diagonal है ये वाला, इसको छोड़ के except those in leading diagonal are zero, बाकी सब जीरो है. देखो तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 2 3 4, बाकी सब एलिमेंट जीरो है, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. हाँ ये सही डेफिनेशन है. सो डायगोनल मैट्रिक्स दोस्तों वह होता है जो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी सब जीरो होता है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 और ये 0 0, तो ये जो लीडिंग डायगोनल है इसको छोड़ के बाकी 0 0 रहेंगे, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है. चलो तो 16 पे आते हैं. सेक्शन 1 कंप्लीट होने वाला है. इफ x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन k. कम ऑन, फैक्टर बोला है, थोड़ी देर पहले रिमाइंडर की बात हुई थी, अभी फैक्टर की बात हो रही है. तो x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. फैक्टर है मतलब क्या, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. फैक्टर मतलब वो होता है जो कंप्लीटली डिवाइड करता है, राइट. तो कंप्लीटली डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर जीरो छोड़ता है, करेक्ट है कि नहीं. सोचो ना, 12 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचता ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा 12 2 से डिवाइड हो जाता है. 2 1s are 2 6 are, राइट. सो 12 को 2 डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 कह सकते हैं. लेकिन 12 को अगर 5 से डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है. 5 2s are 10 होता है, बाकी 2 बच गया तो वो रिमाइंडर 2 है. तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 बट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12. तो फैक्टर होने का मतलब यही है कि रिमाइंडर जीरो आता है, राइट. तो इस क्वेश्चन में हमारा फैक्टर कौन है, x माइनस 2. तो x माइनस 2 को जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x की वैल्यू 2 आएगी, और ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो बिंदास, ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट करने से होगा क्या, सब्स्टिट्यूट करने से क्या आएगा बताओ, तुम मुझे बताओ. सब्स्टिट्यूट करने से आता क्या है, सब्स्टिट्यूट करने से रिमाइंडर आता है. लेकिन क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर बोला गया है तो रिमाइंडर को 0 मान सकते हैं ना, राइट. सो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आएगा क्या, देखो इधर 2 क्यूब. सो एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ. देखो यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस के. अब मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करूंगा तो इससे रिमाइंडर आएगा, लेकिन रिमाइंडर तो मुझे ऑलरेडी पता है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड. ये वर्ड क्या है, फैक्टर. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वल टू 0 कर सकते हैं. देखो पहले वाले सम में जहां पे ये देखो रिमाइंडर फाइंड करना था, देखो इस सम में ना रिमाइंडर फाइंड करना था, तो हमने x की जगह पे -3 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी. यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं लेकिन उसको इक्वल टू 0 भी कह रहा हूं. ये क्यों कह रहा हूं इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर है. कौन फैक्टर है, x माइनस 2 फैक्टर है. तो अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो 2 सब्स्टिट्यूट करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं. वैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो अगर बोला होता x प्लस 3 फैक्टर है तो क्या करते, अगर कहता x प्लस 3 फैक्टर है तो क्या करते, तो -3 सब्स्टिट्यूट करते, राइट, और इक्वल टू 0 भी लिख ही देते. समझ रहे कि नहीं, ठीक है. सो ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले, राइट. सो 2 का क्यूब 8 प्लस अगेन 8 माइनस 26 प्लस के इक्वल्स टू 0. 16 माइनस 26 प्लस के इक्वल्स टू 0, माइनस 10 प्लस के इक्वल्स टू 0 एंड के इक्वल्स टू 10, राइट. सो यहाँ पे के की वैल्यू 10 आ गई एंड आई फील द ऑप्शन डी इज करेक्ट. करेक्ट, हाँ 10, ठीक है. घाई घाई में -10 ए ऑप्शन टिक मत कर देना, ठीक है. चलो अब सेक्शन 1 तो हो गया, 16 क्वेश्चंस हो गए, काफी आसान दिखे. आगे बढ़ जाते हैं, चलो फटाफट करते हैं. अभी दिस इज टेकिंग लॉन्ग टाइम. 17 करते हैं. अ मैन डिपॉजिट 1200 इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर. देखो बच्चों लोग 1200 रुपीज पर मंथ उन्होंने डिपॉजिट किया है 1 साल के लिए, और 5% सिंपल इंटरेस्ट पे. कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न्ड. तो इंटरेस्ट की फॉर्मूला सबको पता है. इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है, PN+1 into R upon 100 and 12 and 2, करेक्ट. सो
जो भी आप लिखते हो 12 इंटू 100 इंटू जो भी आप नंबर्स लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे p की जगह पे 1200 आएगा। नंबर ऑफ मंथ्स 1 ईयर बोला है, 1 ईयर है तो 1 सब्स्टिट्यूट मत करना, ये बहुत गलती हो जाती है। मंथ्स में होता है, यहाँ पे जो n है दिस इट इज नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, फॉर्मूला में ये नंबर ऑफ मंथ्स है। 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, तो n की जगह पे 12 आएगा। सो 12 इंटू 13 इंटू रेट दिया है 5/100, 12 एंड 2, सो दिस 12 डायरेक्टली कैंसिल, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 1 2 6 राइट। सो 6 3 कितना होता है यार, 6 5 सॉरी 6 5 30 और 13 और 3 तो 39 होता है, तो 30 से 390 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 390। और बहुत सारे ऑप्शन थोड़े सेंसिबल भी नहीं लगते हैं, ठीक है। 1200 हर महीने आपने डिपॉजिट किया तो एक साल में आपको 14,000 इंटरेस्ट मिलेगा, डजंट मेक सेंस। अगर ऐसी कोई बैंक है तो मुझे भी बता दो यार, मैं भी डिपॉजिट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता यार, इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 1200 रुपए हर महीने दे रहे हो और एक साल में आपको एज एन इंटरेस्ट एक्स्ट्रा 14,000 मिल गया, ऐसा तो नहीं चलेगा। 4,000 इंटरेस्ट डजंट मेक सेंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी। तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, काफी आसान था, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना था। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, कम ऑन लुक एट दिस, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 देख के बचपन में कुछ पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 देख के कुछ ना कुछ दिमाग में आता था। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, बस थोड़ा सा देख देख के जो जो दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और ये 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अभी ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, सही है कि नहीं? तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये मतलब है उसका। चलो सो दिस इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल, क्या बात है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 फैक्टर्स, उसमें से ये एक फैक्टर है। अब ये एक है कि 2 है, सोचो। अरे अभी तो बताया एक्स स्क्वायर माइनस 4 के अंदर दो चीजें हैं, क्या? एक है एक्स प्लस 2 और एक है एक्स माइनस 2। तो 3 में से 2 हम लोग को पहले से ही दिया है, ऐसे पढ़ के लगता है एक ही दिया है, बट ये एक नहीं है, ये तो 2 है, ठीक है। सो 3 में से 2 फैक्टर्स हमको ऑलरेडी पता है, कौन कौन? एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। बोलता है बाकी का एक और फैक्टर निकालो और सारे फैक्टर्स बताओ कौन से हैं। अब ये तो ऑप्शन चला गया, देखो डी ऑप्शन, एक्स माइनस टू बोल रहा है, ये तो गलती है। यहाँ पे भी एक्स माइनस टू एक्स, ये तो गलती है, क्योंकि मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होता है वो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 होता है, तो ऑप्शन ए और बी में से कोई करेक्ट हो सकता है। अभी कौन सा होगा वो देखते हैं। अब मुझे ये देखना है कि एक्स प्लस 1 उसका फैक्टर है कि एक्स माइनस 1 उसका फैक्टर है। अगर यही सम थियरी में आता, मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता, तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ता। क्या करना पड़ता? डिवाइड। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करते एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। So we will have to divide x cube, this polynomial, with x square minus 4, and after division whatever would have been the quotient is the answer, मतलब is the remaining factor। but ऐसा अब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एमसीक्यू फॉर्म है, तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। हम लोग एक शॉर्टकट लगाते हैं ऑप्शंस में, इधर x प्लस 1 और इधर x माइनस 1 है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, राइट। अब या तो x प्लस 1 फैक्टर होगा इसका, या तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, तो चेक कर लो ना, चेक कर लो x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है। उसको कैसे चेक करते हैं? अभी तो ऊपर ऊपर सिखाया कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो 2 सब्स्टिट्यूट करके इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे तो चेक करना है ना। तो अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब रिमाइंडर कहां से आ गया? अरे सीधी बात है ना, फैक्टर वही होता है जो रिमाइंडर 0 छोड़ता है। सो x प्लस 1 फैक्टर है, मतलब x की जगह पे माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4x नहीं माइनस 1 एंड माइनस 4। अब इसका आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और यहाँ पे देखो -4 और -1 विल बिकम्स +4 एंड -4। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 0 आ गया, तो मेरा आंसर ये करेक्ट है। लेकिन मैं एक बार बी भी चेक करता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x -1 लिखा है ना, तो 1 डालते थे, तो 1 डालेंगे तो क्या आएगा? 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 -4।
So this will be 1 plus 1 minus 4 minus 4 which is not 0. ठीक है, ये तो 2 minus 8 minus 6 आ रहा है कुछ, तो 0 तो नहीं आ रहा, मतलब पक्का x minus 1 फैक्टर नहीं है। तो x minus 1 फैक्टर नहीं है, x plus 1 फैक्टर है। तो इसके 3 फैक्टर्स कौन से हुए? 2 फैक्टर्स तो दिए हुए थे, एक x plus 2 और x minus 2, और तीसरा अभी अभी मैंने x plus 1 चेक किया। कैसे चेक किया? सब्स्टिट्यूट करके। ये एडवांटेज है। ठीक है, अगर यही सब्जेक्टिव होता तो मैंने बताया पूरा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अब बहुत आसानी से हो गया। चलो, आई होप सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाता है। टोटल अमाउंट टू बी, क्वेश्चन बोल रहा था फॉलोइंग bill shows the GST rates and mark price of articles A and B. Total amount of to be paid for the above bill is, ठीक है, बहुत आसान है। एक आर्टिकल ए है जो 300 रुपए में खरीदा गया है, और आर्टिकल बी जो है वो 1200 रुपीज में परचेज किया है। सो हमने आर्टिकल ए पे 12% जीएसटी पे की और आर्टिकल बी पे 5% जीएसटी पे की। तो फाइनल बिल कितना आया वो पूछ रहा है, कोई बात नहीं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, पहले तो जीएसटी निकाल लो। 12% जीएसटी है ना, तो 12% ऑफ 300 हमें आर्टिकल 300 में मिल रहा है। तो 300 में मिल रहा है, तो 300 का 12% विल बी 36। सो जीएसटी पेड ऑन आर्टिकल ए इज 36 रुपीज, करेक्ट। बी आर्टिकल का मार्क प्राइस 1200 है, तो 5% उसके ऊपर जीएसटी, तो 5% ऑफ 1200 कितना होता है? 5% हो, ये 60 होता है। अब देखो, हमने आर्टिकल ए खरीदा और आर्टिकल बी खरीदा। आर्टिकल ए 300 का था, आर्टिकल बी 1200 का था, तो टोटल मुझे 1500 देना था। लेकिन टैक्स भी तो पे करेंगे, जीएसटी भी तो पे करना है कि नहीं? तो 1500, इसलिए सारे ऑप्शंस देखो 1500 के आसपास ही। तो एग्जैक्टली कौन सा आंसर है वो देखना। 1500 तो पे करेंगे, प्लस टैक्स भी तो पे करेंगे, टैक्स मतलब जीएसटी भी तो पे करेंगे। अब फर्स्ट आर्टिकल पे जीएसटी 36 रुपीज है और सेकेंड आर्टिकल पे 60 रुपीज है, तो टोटल तो 96 होता है इनका। सो टोटल जीएसटी तो 96 होता है, तो 1500 भी पे करना है और 96 भी पे करना है, तो आंसर आएगा 1596। अरे समझे कि नहीं समझे? टोटल अमाउंट ही पूछा है ना, टोटल अमाउंट में 1500 प्लस जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, 1596, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालना, मतलब इसको सॉल्व करना है, काफी आसान है। देखो आई कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पे कि -8 लेस देन x -7 लेस देन -4। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। एक आसान सा मेथड होता है, यहाँ पे बीच में x -7 है, लेकिन मुझे बीच में x चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट x इन बिटवीन, तो ये -7 को हटाना है। इस -7 को हटाने के लिए आप पूरे इनइक्वालिटी में ऐड कर दो +7, सबको +7 दे दो। -8 +7, x -7 था उसको भी +7, -4 +7। मैंने किया क्या, बस सबको +7 दिया। दिस इज अ वैलिड स्टेप इन मैथमेटिक्स। अब जो भी एक टर्म के साथ करोगे वो सारे टर्म्स के साथ करोगे, तो the equation is going to, the inequation is going to hold true, right? Just for example, आपको दिया हुआ x equal to 5, तो अगर आप दोनों साइड 2 ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो ना यार। तो आप बोलने का x + 2 = 7, बात तो वही हो गई ना, तो करना अलाउड है। तो हमने +7 सब में किया। क्यों किया +7? क्योंकि मैं चाहता था ये -7 और +7 हट जाए। अगर यहाँ पे -3 होता तो मैं +3 करता हर जगह पे, यहाँ पे 2 होता तो सब जगह पे +2 ऐड करता, मतलब +2 करता सबको। तो चलो देखते हैं इससे हुआ क्या। अपना सॉल्विंग पार्ट बहुत इजी हो गया। -8 + 7 -1 होता है, लेस देन x और लेस देन 3। ये देखो ये मेरा आंसर आ गया, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं तो वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम ऐसे करते -8 लेस देन इक्वल्स टू x -7, इसको अलग से सॉल्व करते, और x -7 लेस देन 4 इसको अलग से सॉल्व करते, आंसर तो वही आता। देखो करके दिखाता हूँ, आपको चाहिए तो। ये देखो -7 को इधर भेज दो, -8 + 7 लेस देन इक्वल्स टू x, सो इट्स -1 लेस देन इक्वल्स टू x, राइट। सो इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सही है। अब यहाँ पे x लेस देन 4 + 7 हो जाएगा, और x लेस देन, सॉरी यहाँ पे -4 है, यहाँ पे थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया। सो वी हैव -4 हियर, सो -4 + 7 इट इज 3, तो x इज लेस देन 3, करेक्ट। सही है ना दोस्तों? तो वही हो गया ना यार,
यहाँ पे देखो ऐसा करने से अच्छा ये आ गया ना, तो x इज बिटवीन, इसको पढ़ते हैं, x इज बिटवीन -1 और 3, दिख रहा है ना, x -1 और 3 के बीच में है, -1 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। अब सॉल्यूशन सेट डिपेंड करता है x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई यहाँ पे, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, इस पे ध्यान देना है। तो -1 और 3 से लेके इंटीजर्स कौन से हुए वो देख लो। सो -1 तो इंटीजर है, वो तो वो लेना पड़ेगा। -1 के बाद आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, और 3 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है वहां पे ऐसा इक्वल नहीं दिया, वहां पे सिर्फ <<3 बोला है। ओके, सो -1 0 1 2 ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है, करेक्ट। अब देखो ये वाला देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो ये तो गलत ही है ना, हम लोग को x बिलोंग्स टू होल नंबर्स दिया है, तो ये तो गलत हो गया। ये 0 1 2 3 बोल रहा है, ये तो गलत ही है, क्योंकि होल नंबर्स होता है तो 0 1 2 और उसमें भी 3 नहीं आता। ये बोल रहा है -1 से 3 तक, ये तब होता वैलिड जब यहाँ पे इक्वल टू होता, तब ये सही होता। अब वहां पे इक्वल टू नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलो फिर 21 पे आता है, बोलता है कि आपके पास रेशो दिया है, रेशो इक्वल्स टू रेशो मतलब प्रोपोर्शन दिया हुआ है, देन बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या ऑब्टेन होगा, अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा। सो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो होता क्या, एक बार देख लो। सो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर आपके पास दो रेशोस इक्वल में है, मतलब कुछ प्रोपोर्शन में है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर आपके पास दो रेशोस इक्वल हैं तो आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा सकते हो, इससे यू कैन ऑब्टेन अनदर एक्सप्रेशन, और वो होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू numerator plus denominator upon numerator minus denominator. This is another expression which is also true, ठीक है। तो इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑब्टेन कर सकता है। ये जो इक्वेशन है इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया तो ये आ सकता है, ठीक है। तो यही होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। तो यहाँ पे देखो, जब आप इधर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, दैट मींस न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, क्या ये ऑप्शन है, नहीं लग रहा, देखो क्यों नहीं लग रहा, देखो यहाँ पे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर इधर ऊपर प्लस दिया यहाँ पे माइनस दिया है। ये ऑप्शन करेक्ट तब होता, सोचो ये ऑप्शन करेक्ट तब होता जब यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता, करेक्ट, या तो फिर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता। देखो ये अगर इसको दोनों साइड रेसिप्रोकल किया तो भी चाहिए, सही है, हाँ, ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, ये भी करेक्ट है। आपने क्या किया, इनवर्ट एंडो कर दिया बस, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, दो रेशियोज को उल्टा करेंगे तो इक्वालिटी रहता ही है, राइट। सो ऑप्शन बी तो हमारा करेक्ट नहीं है एक्चुअली, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्लियरली दिख रहा है, राइट, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ये देखो 5a प्लस 7b अपॉन 5a माइनस 7b, ये तो सही है, लेकिन ये 4c माइनस 3d हो गया, ये तो गया ऑप्शन, ये भी ऑप्शन चला गया। ये देखते हैं 5a प्लस 7b अपॉन 5a माइनस 7b, 4c प्लस 3d अपॉन 4c माइनस 3d, हाँ ये कुछ ये करेक्ट दिख रहा है। और ये देखो 5a प्लस 7b अपॉन 5, ये तो दोनों सेम ही है तो कैंसिल ही हो जाएंगे, राइट। तो ये तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से ये तो नहीं आता, दोस्तों समझ रहे हो, ये आता ही नहीं है, तो चीज ही नहीं है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो 22 पे आते हैं, जिसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए स्क्वायर पूछा है। सिंपल है ना, ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो। कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है, ए स्क्वायर निकालना है तो सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49 बोलते ये आंसर है। ये गलत, ऐसा नहीं होता। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। सो ए मैट्रिक्स उठाना है 2 0 -1 7, उसको हमें दूसरे 2 0 -1 7 मतलब वापस ए से ही मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, कैसे करते हैं देखो, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेके। सो 2 इंटू 2 और उसी साथ में 0 इंटू -1, सो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 2 इंटू 2 4 एंड 0 इंटू -1 इट इज
0, तो 4 + 0 लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे हुआ 4 + 0? ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, रो कॉलम। चलो वापस इसी रो को इस कॉलम के साथ भी करो। 2 × 0 0, 0 × 7 अगेन 0, सो दिस 0 + 0। वंस अगेन अभी नीचे वाला, अभी यही रो को, और तो कॉलम्स नहीं है करने के लिए, तो अभी नेक्स्ट रो उठा लो, नेक्स्ट रो इस कॉलम के साथ। सो -1 and 2 and 7 and -1, so -1 × 2 will give me -2, and 7 and -1 will give me -7. Similarly, again this with this, so -1 × 0, which is actually 0, and 7 × 7, which is 49. सो आंसर क्या आया एक बार देख लेते हैं। आंसर आया 4 0 -9 और 49। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन बी नजर आ रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो, हो जाएगा। चलो लास्ट सेक्शन सी पे आता है। सेक्शन सी हमारा लास्ट है। दो सेक्शन तो हमने काफी अच्छे से कर लिए। 23 में अभी मैंने बताया था सेक्शन 3 में 3 क्वेश्चन है, तो 23 क्वेश्चन, 24 एंड 25, ईच ऑफ 4 मार्क्स, क्योंकि इन सब के अंदर 4 सब क्वेश्चन है। 23 के अंदर 4 सब क्वेश्चन, 24 के अंदर भी 4 सब क्वेश्चन, 25 के अंदर भी 4 सब क्वेश्चन। ठीक है, सो ईच सब क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। चलो चालू करते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, काफी अच्छी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी बाय रोड इज 240। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, इनके बीच का डिस्टेंस 240 है बाय रोड। ठीक है, सो बाय रोड, एंड बाय ट्रेन इट इज 300। सो ए से बी वापस, लेकिन अब डिस्टेंस उनके बीच में 300 है बाय ट्रेन। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, ट्रेन से ज्यादा डिस्टेंस है, ट्रेन से करेंगे तो 300 ट्रैवल करना पड़ेगा, और रोड से जाएंगे तो 240 ट्रैवल करना पड़ेगा। a car starts from station A with speed x। तो कार रोड पे ही चलेगी, राइट? तो कार की स्पीड दी है x, तो रोड पे जो गाड़ी चल रही है, मतलब इफ यू गो बाय दिस केस, in this case the speed is x, correct? In this case the speed is x because you are going by car and obviously road पे। so ट्रेन की बात करता है। A car starts from station A with speed x km/h, whereas a train starts from the station B with a speed of 20 km/h more than the speed of the car। कार की स्पीड से ज्यादा, ठीक है, 20 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द कार। तो स्पीड ऑफ द कार तो हमने x पकड़ी थी, तो ट्रेन की स्पीड हम क्या पकड़ेंगे? x + 20। बात समझ रहे हो? ये स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये स्पीड ऑफ कार है। मेरी बात समझे? ये देखो, थोड़ा अच्छे से करता हूँ, तुमको चाहिए तो। सो फॉर कार एंड फॉर ट्रेन, कार के लिए डिस्टेंस है 240, ट्रेन के लिए डिस्टेंस है 300। कार की स्पीड है x, तो ट्रेन की स्पीड हो गई x + 20। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। समझ रहे दोस्तों? ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है द टाइम टेकन बाय कार टू रीच स्टेशन बी। तो कार को कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहे हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है, तो टाइम की फॉर्मूला है स्पीड अपॉन डिस्टेंस। करेक्ट है? ना 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 ना, ये देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। सो यहाँ पे कार का डिस्टेंस 240 है और कार की स्पीड x है, तो टाइम टेकन बाय कार विल बी 240 अपॉन x, एंड दैट्स माय ऑप्शन ए। हो गया, इतना आसान था। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच स्टेशन बी, स्टेशन ए, क्योंकि ट्रेन स्टेशन बी से निकली थी तो ए पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला तो अगेन टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रेन का 300, स्पीड x + 20, सो 300 अपॉन x + 20। अब देखो, दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव गिवन 300 अपॉन x आल्सो। ये तो तब होता जब ट्रेन और कार की स्पीड दोनों की सेम होती x, तो ये आंसर होता। ठीक है, अब तो आंसर सिर्फ डी होने वाला है।
300 अपॉन x प्लस 20। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 1 आवर लेस। ट्रेन ने जितना टाइम लिया वो 1 आवर लेस है बाय द कार। अच्छा, ट्रेन का टाइम कितना है, 300 अपॉन x प्लस 20, और कार से कितना टाइम लगा, 240 अपॉन x। और हमें कह रहा है कि इनका डिफरेंस 1 आवर है। देखो, ट्रेन को ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं ट्रेन को कम टाइम लग रहा है। देखो, ट्रेन टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 1 आवर लेस। ट्रेन ने 1 आवर लेस लिया है कार से, तो ट्रेन का टाइम कम है कार से, राइट। कितना डिफरेंस है उनमें, 1 आवर का डिफरेंस है। क्या ये दोनों टाइम एक दूसरे के बराबर है, नहीं, दे आर नॉट इक्वल, दे डिफर बाय 1, देयर डिफरेंस इज 1। So can I say the time taken by car minus the time taken by train is 1, because their difference is 1, because train 1 hour less लेती है, ट्रेन 1 hour कम लेती है कार से, राइट। तो कार और ट्रेन के टाइम में डिफरेंस 1 hour है। ठीक है, सो कार का टाइम कितना है, कार का टाइम कितना, मतलब हाउ मच टाइम कार टेक्स टू रीच स्टेशन बी, दैट्स 240 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 20 is equal to 1, and the quadratic equation form is, चलो quadratic equation बना ही लेते हैं। ठीक है, so I wish to take 60 common from here, and so I have 4 by x minus 5 by x plus 20, just to avoid the big numbers. So now 60 here, let's cross multiply, I mean take the LCM, make the denominator same. Now to make the denominator same, we have to multiply this term by x plus 20 and then this term by x. So if I multiply numerator, that is 4 को x plus 20 से, and 5 into x, और नीचे आएगा x into x plus 20, correct, is equal to 1. So once again, इसको x plus 20 से multiply करना पड़ेगा ऊपर नीचे, that's how you make the denominator same. To make this denominator same, we have to take multiply by x. So both the denominator will become x into x plus 20. So यहाँ पे x है लेकिन x plus 20 नहीं है, इसीलिए इसको x plus 20 से और इसको x plus 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे x plus 20 है लेकिन x नहीं है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से भी x से मल्टीप्लाई कर लिया। So क्या आता है देखते हैं, 60 एंड न्यूमरेटर में we have 4x plus 80 minus 5x and equals to upon x square plus 20x is equals to 1. So let's take the denominator over there. So 60 times 4x minus 5x is minus x plus 80 equals to x square plus 20x. अब बहुत सिंपल है यार, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लो, minus 60x plus 4800 is equal to x square plus 20x. So finally you have to transfer these terms over there to make a proper quadratic equation. X square plus 80x, सही है, x square plus 80 से 20x के बाद minus 60x आएगा प्लस और plus 4800. So this is my answer. Let's see if it matches with any of the option. Yeah, it does match with option. I don't see anything matching here. Do we have some problem here? Yes, so come on guys, ये 4800 वहां पे गया तो we have minus. So see these small calculation mistakes, anytime if you don't pay attention, is maybe you commit that mistake, and by luckily this option was not there, I could have marked that question. So there was slightly leniency towards by my side. I have to be more alert while solving the sum. So guys, this is the correct option. ठीक है, तो अगर वहां पे प्लस होता तो मेरा आंसर गलत हो जाता, प्लस 4800 मार्क करके निकल जाता। दिस वाज क्लियरली अ लर्निंग, एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिली आप लोगों को कि यार कुछ भी थोड़ा सा भी गलती हो गया उधर, तो ऑप्शन में अगर वो है तो मैं वो मार्क करके आ जाऊंगा, बीइंग एन ओवर कॉन्फिडेंट। सो एक बार ध्यान से पूरा सम सॉल्व किया करो और ऑप्शंस को अच्छे से इवैल्यूएट करके एक फाइनल करेक्ट आंसर पे लैंड अप करना। अब आगे क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार निकालना है, मतलब हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पीड ऑफ द कार मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं।
सो 4800 मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और माइनस करके 80 आना चाहिए. सो द फैक्टर्स क्या होंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट. 12 की टेबल में 48 आता है, राइट? 12 की टेबल में 48 आता है, 12 फोर, तो 120 और 40, 120 और 40 कैन गिव मी 80. सो दैट्स करेक्ट. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x प्लस 120. अच्छा, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, आपके साथ आपको करके दिखाता हूँ. यू आर गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 40x माइनस 4800 इक्वल्स टू 0. x कॉमन, x प्लस 120 minus 40 common, x plus 120 equals to 0. X plus 120 into x minus 40 is equal to 0. So x plus 120 is equal to 0. So which turn off to x equals to minus 120, which is invalid. Speed cannot be negative. और x minus 40 equal to 0 करेंगे तो x equals to 40 आ रहा है. This can be the answer. तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है. देखो जानबूझ के उन्होंने 120 भी दिया है, बट दिस इज नॉट द आंसर. यहाँ पे अगर आपने कुछ माइनस प्लस का गफला लफड़ा कर दिया तो गए काम से. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 40 किलोमीटर पर आवर. सो कार की स्पीड है 40 किलोमीटर. अगर ट्रेन की स्पीड पूछेगा तो आंसर वुड बी 60, क्योंकि ट्रेन की 20 ज्यादा है. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. अगर इधर क्वेश्चन में कार नहीं ट्रेन होता और आपने इसको सॉल्व करके 40 मार्क करके आए तो आंसर गलत. ऑल्दो इतनी मेहनत की, सही किया, लेकिन वो ऑप्शन गलत हो जाता. स्पीड ऑफ द कार पूछा है तो अब बरोबर है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन होता तो x जो है वो कार की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड तो 20 ज्यादा है. देखो यहाँ पे पकड़ा था, कार की स्पीड x पकड़ी है, ट्रेन की तो x प्लस 20 है. सही है कि नहीं? So please pay attention. Question number 23 is done. Now 24, second last question. Again, this question seems to be based on similarity. So क्या बोला है? एक ट्राइंगल है PQR. Can you see this triangle PQR? इसमें AB is parallel to QR. वाह, पैरेलल लाइंस देता है तो अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब काफी यूज हो जाती है. QP parallel to CB. QP, that is this PQ, is parallel to CB. Again, these two lines are parallel, तो corresponding angles तो equal होती ही है. करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? राइट. और अल्टरनेट एंगल्स भी कर सकते हैं. सो देखते हैं क्या यूज होगा. और AR इंटरसेक्स, बस इतना ही बोला है. क्या करना है? द ट्राइंगल सिमिलर टू ARQ. ARQ ट्राइंगल से सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है? ऑप्शन दिया हुआ है. ARQ ट्राइंगल है ये. ARQ ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल कौन सा है? ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है? ऑप्शन है ORC. ORC के सिमिलर हो सकता है. देखते हैं. पहला ऑप्शन ORC है ना, तो देखते हैं शायद इससे हो जाएगा. ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं ORC से सिमिलर करने की. तो ट्राइंगल ARQ, ये जो हमारा ट्राइंगल ARQ है, इसमें ये वाली एंगल आती है R, एंड ट्राइंगल ORC में भी सेम एंगल आती है. सो दे हैव द कॉमन एंगल, राइट. सो एक रीजन तो मिल गया. वी नीड एटलीस्ट टू एंगल्स इक्वल टू से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है? आई एम ट्राइंग टू मेक दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल. तो एक्चुअली सिमिलर है वो, क्योंकि दूसरा रीजन आपको यहाँ पे दिखेगा कि बच्चा लोग, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. करेक्ट. दीज टू लाइंस आर पैरेलल. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ले सकते हैं. दिस एंगल इज इक्वल टू, ये जो F वाली एंगल होती है ना, F वाली एंगल्स, ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं. जैसे Z एंगल, Z वाली एंगल्स को हम ऑल्टरनेट कहते हैं, F वाली एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग कहते हैं. सो क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लिया, तो ये एंगल और ये एंगल डेफिनेटली इक्वल होंगी. सो आई कैन से दैट दिस एंगल is equal to this angle. So दोस्तों, ARQ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है. इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. अब अगर ये ऑप्शन डी होता तो पहले मैं बी चेक करता, फिर सी चेक करता, फिर मतलब ए कुछ और होता, बी चेक करता, सी चेक करता, और डी वाला शायद करेक्ट आंसर आता. ठीक है. तो अब ये तो लकीली हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, तो दिस सेव्स टाइम. लेकिन बाकी भी देख देते हैं. ARP, क्या हमारा ARQ ये ट्राइंगल ARP से ये ऊपर वाले ट्राइंगल से
सिमिलर है कि नहीं वो देख लेते हैं। कोई रीजन मिलेगा आप लोगों को? रीजन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओबीआर, ओबीआर इज दिस, ओबीआर इज दिस। ठीक है, तो एआरसी और ओबीआर में कोई ट्राइंगल, कोई दो एंगल्स इक्वल नजर आ रहे हैं? आई गेस नहीं। एक रीजन मिल रहा है, यस, ये देखो, ये वाली एंगल इज इक्वल टू ये वाली एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये देखो। लेकिन सॉरी, ऑल्टरनेट वाली एंगल्स है, लेकिन ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है, राइट? तो एक भी रीजन नहीं मिल रहा। ये देखिए, मैं कह रहा था ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्या? ऑल्टरनेट एंगल्स तो लग रही है, क्योंकि देखो z बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स तो लग रही है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थोड़ी है। लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल नहीं कह सकते, ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। सो ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, ओबीआर भी नहीं हो पाएगा। क्यू आर पी मतलब ये बड़ा ट्राइंगल, क्यू आर पी मतलब ये बड़ा ट्राइंगल, क्या क्यू आर पी और ये हमारा छोटा ट्राइंगल क्या है, दोनों सिमिलर है? एक रीजन तो मिल रहा है, कॉमन एंगल है, ये क्यू एंगल दोनों में आती है। दूसरा रीजन नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं। ठीक है, सो अब ये वाला देखते हैं। पी क्यू आर ट्राइंगल मतलब बड़ा सा ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर, बड़ा सा ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है बीसीआर के। बीसीआर किधर है? बीसीआर, बीसीआर ये वाला। तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो कौन सी टेस्ट से? बड़ा वाला और ये छोटा वाला, बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर और ये बीसीआर, ये दोनों सिमिलर है ऐसा बोला है, लेकिन कौन सी टेस्ट से? अब ये तो ऑप्शन रूल्ड आउट है, ये तो टेस्ट होती नहीं है, ये भी टेस्ट होती नहीं है। सिमिलैरिटी में ये टेस्ट ही नहीं होती, कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट है वो तो कौन से एक्सियम से, मतलब टेस्ट से? तो एसएएस भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, राइट? मतलब दो एंगल्स भी इक्वल हो सकता है, या दो साइड्स प्रपोर्शन और एक इंक्लूडेड एंगल। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है ना, तो क्या हम ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर कह सकते हैं? आर दीज टू एंगल्स इक्वल? क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है? हाँ, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, बिकॉज बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है। देखो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये लाइंस पैरेलल भी है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। ये एक रीजन मिल गया। दूसरा, आपको नहीं लग रहा ये एंगल आर, ये जो फुल एंगल आर है ना, ये फुल एंगल आर, ये छोटे में भी आती है और बड़े में भी आती है, देखो ये कॉमन एंगल है। सो ए टेस्ट से तो सिमिलर हो रहा है, सो इसीलिए आई वुड मार्क दिस। ठीक है, अब इस पे आते हैं, थर्ड पे। क्यूसी 6 है, क्यूसी 6 है और सीआर 4 है, सीआर 4 है। तो क्यूसी 6 है, तो देखो ये 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हमें बोला है आरपी फाइंड करो। आरपी मतलब ये, अभी आरपी मतलब दिस इज द साइड ऑफ अ बिगर ट्राइंगल, राइट? ये ट्राइंगल एंड ये जो जो आरपी निकालना है, मतलब ये ये साइड निकालनी है, और हमको ये साइड दी हुई है। ये कौन से ट्राइंगल की साइड है? इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है। और ये छोटा और बड़ा तो ऑलरेडी हमने सेकेंड पार्ट में सिमिलर किया था, तो इनका सिर्फ साइड्स प्रेपोर्शन होता है, वो यूज करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा इधर से, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट हियर? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब सब पार्ट में हमने पी क्यू आर और बीसीआर को सिमिलर किया था, तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, तो पी क्यू अपॉन बीसी इक्वल होगा क्यू आर अपॉन सी आर के, और वो इक्वल होगा पी आर अपॉन बी आर के। ये जो हमने सेकेंड पार्ट में दो ट्राइंगल्स सिमिलर किए थे, उसमें से ये आया, राइट? ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। तो चलो वैल्यूज डाल देते हैं। मुझे किसकी की वैल्यू दी है? क्यूसी की वैल्यू दी है। क्यूसी इज वेयर इज क्यूसी? क्यूसी नहीं, मुझे क्यू आर चाहिए। क्यू आर इज दिस बिगर वन, सो दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, so this पूरा QR is 10, so I'm going to write here as 10, whereas CR is 4, CR is 4, wow। ठीक है, PQ अपॉन BC की तो वैल्यू मुझे नहीं पता, सी मुझे PQ की कुछ भी वैल्यू नहीं पता, BC की कोई भी वैल्यू नहीं पता, QR और CR पता है, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू PR की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? PR की वैल्यू वो तो निकालनी है हमें,
PR और RP एक ही होता है ना यार, तो PR निकालना है मुझे। BR के बारे में क्या कहना है, BR तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, राइट। तो क्यों ना हम अब इन दोनों को ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व करके PR निकाल लें। सो दिस एक्चुअली इक्वल्स 5 and 2, 10/4 is 5/2, so 5/2 equals PR by 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PR is equal to 15/2, ऑप्शन इज 7.5, ऑप्शन इज C। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है PQ और BC PQ अपॉन BC किसके बराबर है, PQ अपॉन BC किसके बराबर है, PQ अपॉन BC तो ऑलरेडी हमने बताया था 5/2 के बराबर है। सो ये हमारा ऑप्शन यहीं से आ गया। सो ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट थे दिस वर रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट, इसी में से ही निकले काफी आसान तरीके से। ये ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनके प्रोपोर्शनल साइड्स लिख दिए, मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल वो लिख दिया और वैल्यूज डाल दी और कैलकुलेट कर लिया, सिंपल। 25 पे आते हैं आखिरी सम, द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस। वाओ, जब भी आपको nth टर्म दिया होता है ना यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। nth टर्म मतलब अगर n की जगह पे 1 डाला तो दिस विल बी फर्स्ट टर्म, n की जगह पे 2 डाला तो सेकेंड टर्म, n की जगह पे 3 डाला तो थर्ड टर्म। यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू दे दी है और ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें nth टर्म दिया होता है ना वो सम बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सो nth टर्म दिया है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी आर, एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है, तो ये अगर ये nth टर्म है इसको मैं फर्स्ट टर्म भी बना सकता हूं क्योंकि n की जगह पे 1 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर n की जगह पे 2 डालूंगा तो सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, 3 into 1 plus 1 so that's 4, t2 निकालते हैं, 3 2 6 plus 1 that is 7, और थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, 3 3 9, 9 plus 1 again 10, so 4 7 and 10 are the 3 terms of an AP। do we have an option? Yes, option D is correct। now question says the common difference क्या है, अरे यार common difference सीधा दिख रहा है, ये क्या है 4 और ये क्या है 7, समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों, ये 4 है और ये 7 है, तो अगर ये 4 है और ये 7 है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 7 है, तो 3 से इंक्रीज हो रहा है, 7 - 4, so 7 - 4 which is 3 and the option A is correct। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है यार, 4 7 10, 3 से आगे जा रहा है। which term of the which of the following is not a term of AP। अच्छा AP का कौन सा टर्म नहीं है ये, इनमें से कौन सा टर्म AP में नहीं आता है, ये जो हमारी AP है ना जिसका nth टर्म दिया हुआ है, ये जो हमारी AP है 4 7 10 डॉट 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 चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, इसमें कौन सा नंबर इनमें से नहीं आता। तो इसको एक शॉर्टकट तरीका भी है सोचने का, ये पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 7 है, तीसरा नंबर 10 है, ध्यान से देखो, ये 4 मतलब 3 की टेबल वाले से +1, राइट, 3 1 जा 3 और +1, ये देखो 3 2 जा 6 और +1, ये 3 3 जा 9 और +1, समझ रहे कि नहीं, मतलब 3 की टेबल वाले ये नंबर जो है ये 3 की टेबल वाले +1 है, वो यहाँ पे दिख रहा है 3n + 1 मतलब 3 के मल्टीपल, लेकिन +1 भी करना है, तो 3 के मल्टीपल का जस्ट नेक्स्ट वाला। अब आप मुझे बताओ 25 क्या 3 की टेबल के नेक्स्ट वाला है, मतलब 3 की टेबल में जो नंबर आता है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर है क्या 25, हाँ 3 8 जा 24 होता है, +1 किया तो 25, ये करेक्ट है। अच्छा 27 देखो, 3 की टेबल में 27 आता है लेकिन ये +1 नहीं हुआ, मतलब ये गलत है, ये नहीं आ सकता, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है कि ये टर्म नहीं आ सकता एपी में, नॉट अ टर्म। 28 आता है क्या, हाँ 3 9 जा 27 होता है और +1 किया तो 28 आता है, 3 10 जा 30 हुआ, +1 किया तो 31 आया। तो ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेथोडिकली जाना है, मतलब थोड़ा सीक्वेंस वाइज जाना है, जो बुक में कॉन्सेप्ट लिखे उसको अप्लाई करना है, तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जानना है कि ये टर्म एपी में आता है कि नहीं आता है, हमें वो ढूंढना है इन चारों में से, इन चारों में से वो ढूंढना है जो एपी में नहीं आता। तो देखते हैं 25 आता है कि नहीं आता है, तो कैसे पकड़ेंगे, nth टर्म को 25 पकड़ लो, और nth टर्म तो आपको पता है 3n + 1 है, इसको इक्वेट करो, और अगर आपको n की प्रॉपर वैल्यू मिली, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये n इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू 8 आ गई,
मतलब ये 8th टर्म है, समझे? इधर आ जाओ, 27 लेके देखते हैं। nth टर्म को 27 लिया तो 3n + 1 इज इक्वल टू 27, 3n इज इक्वल टू 26, n इज इक्वल टू 26/3। ये एक n की इनवैलिड वैल्यू है। n कैन टेक ओनली नेचुरल नंबर्स, याद रखना। जो n की वैल्यू होती है ना, वो नेचुरल नंबर्स ही हो सकती है, ना वो नेगेटिव हो सकती है, ना वो डेसिमल में हो सकती है, ना वो फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि n मतलब पोजीशन, या तो फर्स्ट टर्म होगा, या तो सेकंड टर्म होगा, या तो 8th टर्म होगा, या तो 9th टर्म होगा। ये तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ऐसा थोड़ा 8 पॉइंट समथिंग कोई टर्म थोड़ी होता है, या तो 8th टर्म और उसके बाद 9th टर्म, बस 8th टर्म के बाद 9th टर्म आता है, 8.6 टर्म थोड़ी कोई आता है। सो 27 को nth टर्म लेके n की वैल्यू निकाली, वो बरोबर से नहीं आई, मतलब दैट वाज नॉट अ प्रॉपर वैल्यू, हेंस 27 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। सम का फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा, बहुत आसान है, राइट? बहुत ही ज्यादा आसान है, तो कर लेते हैं दोस्तों। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। सो 10/2, 2a मतलब फर्स्ट टर्म का डबल, 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है 4 था, फर्स्ट टर्म 4 आया था ना, a मतलब फर्स्ट टर्म, a का डबल 8 प्लस 10-1 ना, n मतलब 10 था ना, क्वेश्चन में दिया है 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो n 10 है, तो 10-1 इज 9, और डिफरेंस तो इसमें मुझे 3 का नजर आ रहा है, करेक्ट? कॉमन डिफरेंस हमने पहले ही बोला है कि 3 है। 4 7 10 हमारा एपी है, तो 3 ऐड हो रहा है, तो डिफरेंस इज 3। सो दिस इज 5 एंड 8 + 27, 5 into 8 + 27 is how much? 27 + 8, it's 35, which comes, कितना आता है? अरे 35 2 twice is 70, 140 and 175, right? So option A is correct. तो दोस्तों देखो, इतना आसान पेपर था, सारे सम्स बहुत ज्यादा इजी थे, मैंने कुछ ज्यादा डिटेल डिस्कशन कर दिया जहां पे नीडेड भी नहीं था, बट आई होप विच एवर लेवल यू आर एट, आपको सारे सम्स समझे रहेंगे। सो वी सॉल्व एंटायरली द एंटायर पेपर। और चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई केमिस्ट्री के पेपर या फिजिक्स के पेपर के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।